Hello friends, welcome to Shriji Informatics. In this today's video, we are going to discuss about some of the most important concepts and MCQs of temperature measurement, which can be helpful for you in the upcoming different exams. So let's begin. So temperature measurement. Temperature is generally defined as a measure of hotness or coldness. Temperature indicates the average kinetic energy of the particle. So these are the different scales of temperature. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए डिफरेंट स्केल्स है, केल्विन, सेल्सियस, रैंकिन और फ़ारेनहीट. सो दीज आर द कन्वर्जन टेबल. जनरली एग्जाम्स में पूछते हैं कि केल्विन में टेम्परेचर दिया है और आपको सेल्सियस में फाइंड करना है. सो विद द यूज ऑफ दैट फोर इक्वेशन यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट. So K is equal to C plus 273. K indicates Kelvin. C stands for Celsius. Kelvin is the SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर. कई बार वो भी एग्जाम में पूछते हैं कि टेम्परेचर का SI यूनिट क्या है, तो इट इज़ अ केल्विन. R stands for Rankine, Kelvin. R is equal to F plus 459.69 विच मीन्स रैंकिन और फ़ारेनहीट का कन्वर्जन है. एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछते हैं कि व्हाट इज़ द मतलब टेम्परेचर का कौन सा स्केल सबसे पुराना है, मतलब ओल्डेस्ट स्केल ऑफ टेम्परेचर. सो इट इज़ अ फ़ारेनहीट. तो कई बार वो भी एग्जाम में पूछते हैं. दिस इज द कंपैरिजन ऑफ केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट विद डिफरेंट aspects. First is the boiling point, freezing point and absolute zero point. So let us start with the absolute zero, which means is the lowest temperature possible. At this temperature of absolute zero there is no motion or no heat. So absolute zero occurs when at 0 Kelvin, when it comes to Celsius minus 273.15 and Fahrenheit होगा तो minus 459.6. विच मीन्स अगर कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो केल्विन में उसका क्या वैल्यू होगा, तो इट इज़ अ 0 केल्विन. फ्रीजिंग पॉइंट विच मीन्स जो हमारा लिक्विड स्टेट में से सॉलिड में कन्वर्ट होगा. सो केल्विन में 273, सेल्सियस में 0 एंड फ़ारेनहीट में 32. बॉइलिंग पॉइंट विच मीन्स वाटर टू वेपर और गैसियस में कन्वर्ट होगा. सो 373 फॉर केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 100 डिग्री फॉर सेल्सियस एंड फ़ारेनहीट में 112. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है क्वेश्चंस पूछने के लिए. सो दीज आर द डिफरेंट कन्वर्जन टेबल्स है हमारे पास. इससे आप कोई भी टेम्परेचर यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट कर पाओगे. एंड दिस इज व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट, एब्सोल्यूट जीरो, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. So we'll see some of the MCQs. What is the SI unit of temperature? As we have already discussed, Kelvin is the SI unit of temperature. Which temperature scale is commonly used in scientific research? मतलब generally scientific research में कौन सा temperature scale use होता है? So it is a Celsius. What is the boiling point of water in Kelvin? So Kelvin में 373.15 Kelvin जो है वो boiling point, आगे ही हमने वो एक चार्ट में डिस्कस किया. What type of thermocouple, what type of thermometer uses the principle of electrical resistance change with the temperature? इनमें से कौन सा है, तो it is a RTD, resistor temperature detector. So as the temperature changes resistor changes, और वही प्रिंसिपल पे RTD काम करता है, resistor temperature detector. What is the absolute zero? ऑलरेडी डिस्कस किया कि absolute zero होगा वो 0 केल्विन पे होगा. कई बार सेल्सियस और फ़ारेनहीट में भी पूछ सकते हैं. What is the freezing point of water in Celsius? Freezing point, which means the substance changes from liquid to solid. So it is 0 degree Celsius. Which temperature scale has an equal degree interval as Celsius but starts at absolute zero? So जो वो होगा वो Kelvin scale होगा. This is the basic difference between RTD, thermocouple and thermistor. RTD which means resistor temperature detector, thermocouple Seebeck effect पे काम करता है. So as the temperature changes we'll get the millivolt. थर्मोकपल का और आरटीडी और थर्मिस्टर का डिटेल वीडियो ऑलरेडी आगे हमने बनाया हुआ है. सो आप डिटेल में भी उसमें देख सकते हो. थर्मोकपल देयर आर डिफरेंट टाइप्स, BE, JK, RS, TY. थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर जो है उसमें NTC पे काम करता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, विच मीन्स टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टर घटेगा और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टर बढ़ेगा, वाइस वर्सा. सो दिस इज ऑल अबाउट थर्मिस्टर. कहीं बार एग्जाम में ऐसा भी पूछते हैं कि विच टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस हैज़ द हाईएस्ट सेंसिटिविटी. तो सेंसिटिविटी की बात आएगी तो थर्मिस्टर आएगा. थर्मिस्टर हैज़ द हाईएस्ट सेंसिटिविटी. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आरटीडी, थर्मोकपल एंड थर्मिस्टर. आरटीडी इज मोस्ट एक्यूरेट, बेस्ट स्टेबिलिटी, हायर लिनियरिटी. थर्मोकपल में सेल्फ पावर्ड होगा, रगड़ होगा और लार्ज टेम्परेचर चेंज. थर्मोकपल को हम जनरली उसमें कोई पावर अप की ज़रूरत नहीं है तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर भी कहेंगे.
आरटीडी और थर्मिस्टर को हम पैसिव ट्रांसड्यूसर में भी कंसिडर कर सकते हैं। थर्मिस्टर में स्मॉल साइज, फास्ट रिस्पॉन्स एंड हाईएस्ट सेंसिटिविटी। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आरटीडी, थर्मोकपल एंड थर्मिस्टर। कई बार एग्जाम में उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आ सकते हैं। विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन थर्मोकपल? थर्मोकपल में जनरली क्रोमेल एल्यूमेल, मतलब थर्मोकपल जैसे हमने डिस्कस किया कि सीबेक इफेक्ट पे काम करता है। बहुत सारे टाइप के थर्मोकपल है, BEJKRSTY। सो क्रोमेल एल्यूमेल विच मीन्स के टाइप का थर्मोकपल का जो है वो मेटल हमने किया है कि कॉमनली यूज, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा लिनियरिटी होती है। डिटेल वीडियो इज ऑलरेडी आई हैव प्रिपेयर्ड, यू कैन सी। What is the primary advantage of using a thermocouple for temperature measurement? टेम्परेचर मेजरमेंट में थर्मोकपल क्यों यूज करना चाहिए? तो थर्मोकपल एज ए वाइडर टेम्परेचर रेंज, जैसे ही आगे हमने वीडियो में डिस्कस किया। सो टेम्परेचर थर्मोकपल है विच कैन बी यूज फॉर -2 डिग्री सेल्सियस टू 750 डिग्री सेल्सियस। विच टाइप ऑफ thermometer is most suitable for measuring extremely high temperature? हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कौन सा डिवाइस यूज होगा? तो इट इज अ थर्मोकपल। व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ फ़ारेनहीट स्केल? फ़ारेनहीट स्केल का टेम्परेचर रेंज होगा -40 फ़ारेनहीट टू 212 फ़ारेनहीट। व्हाट इज द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ पायरोमीटर? जनरली पायरोमीटर है वो एक टेम्परेचर मेजरिंग ऐसी डिवाइस है विच कैन बी यूज टू मेजर द ऑब्जेक्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस। अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका हमको टेम्परेचर मेजर करना है, नॉन कॉन्टेक्टिंग मेथड चाहिए और अगर थोड़ा डिस्टेंस पे है, तो विद द यूज ऑफ पायरोमीटर वी कैन मेजर द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सो पायरोमीटर जनरली काम करता है मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है। सो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट पे काम करता है और पायरोमीटर जो है वो नॉन कॉन्टेक्टिंग डिवाइस है। What is the typical operating range of bimetallic thermometer? So bimetallic thermometer की रेंज क्या है? -20 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस। What is the primary advantage of using RTD over a thermocouple? So RTD जनरली हमने वैसे ही आगे एक डिफरेंस दिखा था। So RTD जो है वो जनरली यूज होता है when we want a linearity। हमने जैसे ही उसका डिफरेंस देखा, so this is the difference between RTD, thermocouple and thermistor। So RTD हम क्यों यूज़ करेंगे? बिकॉज इट इज़ अ मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस है, उसकी वजह से हम उसको यूज़ करेंगे। उसकी स्टेबिलिटी भी अच्छी है, हायर लिनियरिटी है। सो RTD प्रेफरेबल ओवर थर्मोकपल एंड अदर डिवाइस एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर हमें वाइड टेम्परेचर रेंज चाहिए तो हम थर्मोकपल यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग RTD? जैसे हमने डिस्कस किया, बेटर लिनियरिटी है। विच टेम्परेचर सेंसर बेस्ड ऑन पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? सो इंफ्रारेड थर्मोमीटर जो है वो पायरो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करेगा। व्हाट इज द रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ थर्मिस्टर? सो थर्मिस्टर में जनरली NTC होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा। तो इट इज एक्सपोनेंशियल बट एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग बिकॉज इट हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज रेजिस्टर डिक्रीजेज, वैसे वर्सा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंपेंसेटिंग केबल इन अ थर्मोकपल सिस्टम? सो थर्मोकपल में कंपेंसेटिंग केबल होता है टू रिड्यूस द थर्मल स्ट्रेस ऑन द थर्मोकपल। थर्मल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए थर्मोकपल और उसको ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए वी आर यूजिंग दैट थिंग। व्हाट इज द रेंज ऑफ अ टिपिकल मर्क्यूरी थर्मोमीटर? सो -20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द प्राइमरी डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग मर्क्यूरी थर्मोमीटर? मर्क्यूरी थर्मोमीटर का बेसिक एक डिसएडवांटेज है टॉक्सिसिटी ऑफ द मर्क्यूरी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द थर्मोवेल in temperature measurement? To protect the thermometer from physical damage, to enhance its accuracy, to isolate the thermometer from process fluid and to increase the speed of temperature measurement। so उसका most accurate answer होगा to isolate the thermometer from the process fluid। what is the fundamental principle of behind RTD? as we already discussed, change in electrical resistance with temperature। which material is commonly used in sensing element of RTD? RTD में बहुत सारे एलिमेंट यूज होते हैं but the most common element which can be used for RTD is a platinum RTD। what is the type of resistance value at 0 degree for a standard platinum RTD? तो standard platinum RTD में जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो रेजिस्टर 100 ओम होगा। What is the temperature coefficient of resistance for most of RTD? So it is a generally हमने देखा पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा। What is the purpose of lead wire compensator in RTD? 2 wire and 3 wire lead compensator।
So the answer is to reduce the thermal stress on the RTD. We are using a lead wire compensation technique. 2 wire 3 wire होती है. How does the resistance of an RTD change with an increase in the temperature? So increases again, repeated MCQ है. What is the basic operating principle of thermocouple? So thermocouple जो है वो Seebeck effect पे काम करता है. When two dissimilar metal connects and form a junction, तो एक hot junction होगा और cold junction होगा. But for the thermocouple we require cold junction compensation. Which metals are commonly used in type K thermocouple? So it is a chromel alumel. डिटेल वीडियो है RTD thermocouple और थर्मिस्टर, उसमें सारे थर्मोकपल के जो टाइप है उनका मटेरियल और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसका डिटेल वीडियो है. सो थर्मोकपल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बी जे के आर एस टी वाई. सो के टाइप थर्मोकपल है, उसका सबसे हाईएस्ट लीनियरिटी है. सो इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रेफरेबल होता है और उसका मटेरियल है क्रोमल एल्यूमेल. सीबेक इफेक्ट जो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ वोल्टेज व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स आर जॉइंड. ऑलरेडी डिस्कस किया हमने आगे के पॉइंट में. सो these are the different types of MCQs. So thank you very much for watching this video. हम नेक्स्ट वीडियो प्रेशर मेजरमेंट और फ्लो मेजरमेंट का बनाएंगे. सो थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.